क्या पढ़ाएंगे सर? Good morning, sir. Very good morning. सर कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे सर? जी क्या बता रहे? सर कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? बस अभी पता चल जा रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी Sir. सब चीजें पता चल जाएंगी। Excuse me, sir. Yes, go to pen. Sir, today I'm बोलो. not feeling well, so I cannot take the class. What's your name? Usna. Usna Rizvi. Yes, sir. Go to pen. क्या हो गया बच्चा? Sir, today I have fever, so I cannot take the class at this time. Okay. Sir, may I leave? Yes, you can leave. Thank you, sir. Only 15 students joined. Why? Is there any problem? No, sir. एग्जाम हो गए तो मजा करना है, लग रहा है ऐसा है. चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन. चलो भाई, लास्ट morning, क्लास में sir. क्या हुआ था कुछ पता सकता है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या चीजें एक्सप्लेन करी थी? So 3.2 exercise question number first you have explained. Okay, 3.2 question number 1 is done, huh? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes. Maria, I think you asked the question from me. Yes, Am I sir. right? Yes, Okay, sir. first I will explain this question, which is on page number 37. Okay, question is on page number 37. Question Yes, number sir. 5. Optional exercise Yes, sir. 2.4 of polynomial. Yes, sir. Please open. Question is that if the polynomial x to power 4 minus 6x cube plus 16x So square. which question? Question number 5 of exercise 2.4 on page number 37. Okay. Question number 5, page number 37. Yes, I have got, sir. Okay. So let us start this question. Question is that if the polynomial x to power 4, if the polynomial x to power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial, that is the gx is equals to x square minus 2x plus a, then the remainder comes out to be x plus a. Remainder, that means the rx is equals to x plus a. Then you have to find the value of j and a. Okay, you have to find the value of j and a. Okay, so first I start the division. क्या करना है? पहले हमको dx को gx से डिवाइड करना होगा. x square minus 2x plus a, then it becomes x to power क्लियर है? अभी देखो, यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे आपका x स्क्वायर है, then what will happen? We have to multiply x square. The difference of power is 2, so you read the formula x square times. Okay,
So when you multiply x square and x square, then it becomes x to the power 4. X square minus 2x, it becomes minus 2x cube. X square plus k, it becomes ax square. Then subtract minus plus minus, cancel out. Minus plus, that means subtract हो जाएगा आपका 4x क्यूब आएगा. Then ये 16 है, x स्क्वायर और ये इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है? मिल रहा है? Yes, sir. Okay. So when you take a common x square from these two, then in bracket what will happen? 16 minus यहाँ पे मिलेगा 16 minus k. ठीक है? Excuse me, sir. ठीक है, लाइन चल रही है. The mic are disturbing. The mic are disturbing. इकरा फातिमा, प्लीज ऑफ योर माइक. और एक चीज याद रखो कि जहां भी बैठो पढ़ने के लिए वहां पे आपके पेरेंट्स नहीं होने चाहिए. थोड़ा दूर बैठा करो, डिस्टरबेंस होता है. तो अभी क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 4x क्यूब है. तो आप यहाँ पे रीड करोगे, यानी कि 4x से आपको यहाँ पे टेबल रीड करना होगा. यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 4 का 4 आएगा. देन द डिफरेंस ऑफ पावर इज 1. 3 minus 2, then it becomes a x only. So when you multiply minus 4x to x square, it becomes a minus 4x cube. Minus 4x, then 2 minus का minus minus plus 4 to the 8 x square, then again minus 4k x. So what will happen? Plus minus plus cancel out. Then again when you take a common x square from these, so here is a 16 minus k and here will be minus ka 8. So again when you take a common x from these two, so what will happen? Minus 25 plus 4k. Okay, again then आपको नीचे लेके आना है. So here is the x, here is the x. अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो एक बार सॉल्व करोगे. 16 minus 8 कितना हो जाएगा ये? ठीक है, तो ये आपका बचेगा 8 minus k x स्क्वायर प्लस minus 25 प्लस 4k x प्लस 10. अब इसमें आपको टेबल रीड करनी है. यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है. आपको कितने टाइम्स लगाना है टेबल? 8 minus k, 8 minus k. ठीक है, तो 8 minus k x स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 8 minus k x स्क्वायर. फिर 8 minus की minus 2 से करोगे प्लस माइनस माइनस आएगा, और 2 से 8 की करने जाओगे तो 2 8 जा 16 minus 2k x. then 8 minus k की आप इससे करोगे तो k 8 minus k हो जाएगा. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? अभी समझिए बात. Yes, sir, clear. ओके, देन सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस, ये वाला आपका पार्ट कैंसिल हो गया. अभी देखो इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा आपको? x कॉमन मिलेगा. आपने x कॉमन ले लिया. यहाँ पे आपका है माइनस का 25 प्लस का 4k. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 16 माइनस का 2k. देन here is a 10 minus k 8 minus k. ओके, ये आपका कांस्टेंट टर्म आ गया. अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे. ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 16 है, तो 16 माइनस 25 कितना बचेगा? 9. माइनस का 9 आएगा, एंड देन 4k माइनस 2k. Ikra, your mic is disturbing. Please off your mic. So Ikra's mic is disturbing. डिस्टरबेंस हो रहा है. मैंने बोला माइक ऑफ, तुरंत आवाज जो भी आंसर देना है उसके बाद ऑफ कर देना आपको.
अभी इसमें क्या करना है, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 8k प्लस k स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपने देखा आपका रिमाइंडर कितना गिवन था, x प्लस a गिवन था, x plus a. Yes sir. ओके। लेकिन आया हमारा रिमाइंडर कितना है, ये वाला Minus 9 plus 25k. Yes sir. अब यहाँ थोड़ा मैं राइट करने वाला हूँ, क्या है यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इज x प्लस a, ठीक है। तो जब x प्लस a रिमाइंडर है तो x प्लस a की जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? Yes sir. होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो x प्लस a इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 2k x प्लस ब्रैकेट में आपका है 10 माइनस का 8k प्लस k स्क्वायर। ब्लैक बोर्ड आ रहा है, वहां तक दिखाई दे रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, यानी आपको दोनों साइड से x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की कंपेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे LHS में x के आगे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ मतलब 1 मानेंगे, ठीक। RHS में x के आगे कितना लिखा हुआ है, माइनस का 9 प्लस 2k, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये आपकी जो इक्वेशन है 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के, यानी कांस्टेंट के। क्लियर है? अब जरा इसको सॉल्व कर लो, तो 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 यानी 2k इज इक्वल टू 10, देन k विल बी 5, ठीक है। अब k की वैल्यू कहाँ रख दोगे, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन 10 माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर में राइट कर रहा हूँ, a, देन 25 प्लस 10 दैट इज 35, 35 माइनस 40 यानी माइनस 5, यानी a इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, क्लियर है? Yes sir. हैव यू अंडरस्टैंड? Yes sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? No sir. नो सर। सर ये x प्लस a इज इक्वल टू, सर यहाँ से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही थी आपकी कहाँ पे? सर। ATQ रिमाइंडर सर, ये सर दिस साइड a प्लस, यस सर। देखिए सुनो, मेरी बात सुनो, और ज्यादा गर्म हो रहा है, दिमाग का नहीं हो रहा है। सुनिए क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर कितना है, x प्लस a, यानी हमारे क्वेश्चन में रिमाइंडर हमको क्या दे रखा था, X plus a. दे रखा था, x प्लस a, और हमारा यहाँ पे आया कितना रिमाइंडर, ये वाला पार्ट आया ना? यस सर। Yes sir. Yes, और sir. रिमाइंडर होगा यहाँ पे gx की डिग्री है 2 और रिमाइंडर की डिग्री है 1, यानी Yes, रिमाइंडर sir. हम उस पार्ट को बोलते हैं कि जब डिग्री कम हो जाती है, डिवीजर की डिग्री अगर रिमाइंडर से ज्यादा हो गई तो वहां पे जो आपका लेफ्ट पार्ट होता है वो रिमाइंडर कहलाता है। Dividend, yes, तो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यानी कि हम फॉर्मूला ऑपरेशन नहीं कर सकते, यानी इसके आगे हम प्रोसीड को डिवीजन को प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं कर सकते, यस सर। ये पार्ट हमारा हो गया रिमाइंडर। अब ये पार्ट जब रिमाइंडर हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि ये रिमाइंडर है, ठीक। जैसे हमने sir. कहा कोई दो पार्ट आपस में इक्वल है, हमने कह दिया कि स्टडी पॉइंट जो है ना वो वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल है, तो वर्ल्ड का जो बेस्ट स्कूल होगा ऑन रिकॉर्ड वो स्टडी पॉइंट के क्या होगा, इक्वल होगा ना, होगा नहीं होगा? Yes sir. यस सर। यस। तो सेम थिंग इज हियर कि अगर ये रिमाइंडर है और क्वेश्चन ने बोला है कि ये रिमाइंडर, यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी ना, इक्वल, Yes ठीक है। sir. तो हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इज x प्लस a,
तो x प्लस a की जो वैल्यू होगी वो इस रिमाइंडर के हमने इक्वल कर दी, दोनों को इक्वलाइज कर दिया। इक्वलाइज करने के बाद जब दो चीजें इक्वल हो सकती हैं, हो जाती हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है। ऑप्शन बचता ये है कि आप दोनों साइड से अगर वेरिएबल है, तो अगर दो इक्वेशंस इक्वल है तो उन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है कि अगर दो Yes, sir. इक्वेशंस आपस में इक्वल है तो उन इक्वेशंस में यूज होने वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे x है, एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज व्हिच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो कि वेरिएबल से फ्री है। तो यहाँ पे x के आगे कुछ लिखा नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? -9 + 2k। तो -9 + 2k की इक्वल टू हो जाएगा 1। इधर का कोएफिशिएंट है a, तो वो मैंने इक्वल टू में a लिखा है। और इधर का कोएफिशिएंट कितना है? 10 - 8k + k²। ठीक, इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल ली और इधर वाले में रख दिया, दोनों की वैल्यू आ गई। पहले k की निकाली, फिर a की आ गई। समझ में आई बात इतनी? Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. Yes, sir, understand. ये स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, done. हो गया? So it has done. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चले भाई। Yes, sir. अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 की तरफ, जो मैंने यूज करी थी। चलो भाई, एक्सरसाइज 3.2 ओपन करते हैं। Okay, sir. Okay, sir. First question is done. Then the second question is that on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. Okay. In the previous class, I explained how can you say that the lines can be intersect at a point, lines will be parallel, or a lines will be coincident. Okay, parallel, that means you can say that there will be a no solution. Coincident, that means the path of both equations is equal. Okay, then intersect at a point like this. Suppose that इस तरीके से parallel, that means this, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट होंगी इस तरीके से। मतलब दोनों लाइन जो है, जो पॉइंट्स होंगे वो हमें एक ही लाइन देंगी। अगर हम सारे के सारे दोनों इक्वेशंस के पॉइंट निकालेंगे और पॉइंट्स को जब मैच करेंगे, आफ्टर मैचिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ बोथ इक्वेशंस, वी विल गेट अ single line, that means the path of both equations is equal. Clear? Have you understand? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So first I start to explain the first part. So first part, equations are question number second. First, (5x minus 4y plus 8 is equals to 0). Then 7x plus 6y minus 9 is equals to 0. Okay. So what will you do before starting to solve the question? First, you convert all the equations in a standard form of a linear equation in a two variable. What is the standard form? The standard form is that ax plus by is equals to c. Okay, clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें करना क्या है
अब हमें दोनों अगर इक्वेशंस इस टाइप से लिखी होती हैं, जैसे लिखा होगा 2x + 5 = 7, तो सबसे पहले क्या करोगे, इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, यानी इक्वल टू में आपको 0 बनाना है. Why? Because we have a standard form of a linear equation in two variable is that ax + by + c = 0. Is it clear? ठीक है. मान लिया अगर Yes, sir. करते हो, ठीक है, लेकिन जो राइट प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस जो है वो हम आपको डिफाइन कर रहे हैं. प्रॉपर प्रोसेस यही है, फर्स्ट यू कन्वर्ट बोथ इक्वेशंस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो हियर both are given in a standard form of a linear equation. Then A1 upon A2. अगर दो इक्वेशंस है, वैसे तो आप x का कोएफिशिएंट को a, y के कोएफिशिएंट को b, कांस्टेंट को c. When we have a two equation, then the coefficient of first equation, coefficient of x in the first equation will be a1, coefficient of y will be b1 and a constant will be c1. So same thing is here. अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो x कोएफिशिएंट क्या लिखा है 5, तो a1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, b1 कितना होगा, विद साइन लाना है, प्लस का साइन लिखा है जाता है, माइनस का राइट टर्म पे यानी कि -4 हो जाएगा, c1 8 हो जाएगा. देन a2 सेकंड इक्वेशन को a2 डिफाइन करोगे तो यानी a2 यानी 7 हो जाएगा, b2 6, c2 माइनस का 9. क्लियर. देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है. रेशियो पहले इस पार्ट का देखिए, a1 अपॉन a2 वो हो गया 5/7. ठीक है. b1 अपॉन b2 निकाला -4/6. -4/6, तो ये आपका कट सकता है 2 to the 4, 2 3 the 6, then it will be -2/3. Okay, so can you understand that a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 or not? They No, are sir. not equal. They are not equal. So they are not equal. No, sir. They are not equal. Okay, so when you find the ratio of a1 upon a2, then after b1 upon b2, when you got a situation a1 upon a2 is does not equals to b1 upon b2, here a1 upon Intersecting at a a2 point. does not equals to b1 upon b2, यानी आपको पहली कंडीशन तुरंत मिल गई ना, तो आपको इसके Yes, sir. बाद c1 upon b2 निकालने की जरूरत नहीं होगी. क्लियर है. Yes, sir. आप इसके बाद Yes, c1 upon Yes, b2 sir. निकालेंगे. अगर आपके पास a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 मिलता है, यानी ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो गए, so then after you go on third that means c1 upon c2. क्लियर है. समझ में आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है समझ में. ये कंडीशन किसकी हो गई, तो आप लिखोगे तो the what is the question, the representing pair of linear equation, find out whether the They are intersecting at a point. So the pair of linear equation intersect At a point. at a Point. point. Clear है. Yes, sir. Yes, भाई समझ में sir. आ गया सबको. चलो बच्चा Yes, फटाफट sir. इसको Yes, clear. फटाफट Yes, इसको sir. ले लो. भाई प्लीज ये आवाज कहाँ से आ रही, किसके घर से आ रही है, मम्मी पापा को पढ़ा रहे हो क्या, हाँ मारिया. साथ में कौन पढ़ रहा है, No, मेरे पढ़ रहा sir. मम्मी पापा भी कर रहे हैं. So I am alone in my home. हो गया भाई, Yes, sir. स्क्रीनशॉट हो गया. Yes, sir. Yes, sir. It's done. चलिए Sir. नेक्स्ट पार्ट. जाड़ा बहुत हो रहा है हाँ? आजकल हो रहा है ना. Yes, sir. Yes, sir. 9x plus 3y जी बोलो क्या हुआ, बताओ भाई, कौन बोल रहा है सर. चले
स्टार्ट करें? Yes, sir. चलिए Yes, sir. Yes, sir, you can. D1 कितना 3, D1 कितना 12, 12. A2 18, B2 6, C2 24. Clear? चलिए रेशियो Yes. Yes, sir. A1 upon A2 9/18, B1 by B2 9/18. ये कट So सकता 1 by है 8 आ जाएगा. 1/2, 1 by 2, sorry. B1 by B2 3/6, 1 by 2 again. 1/2. अभी देखो यहाँ पे आ गया A1 upon A2 भी Yes, 1/2 sir. है, 1 upon B2 भी 1/2 है. So then we proceed on third C, part. Third C1 part upon that C2. means- C1 by C2. C1 upon C2. Okay. 12/24, 12/24, 12 12/12, 12/24, then 1/2. आ गए भाई तीनों इक्वल? Yes, sir. Yes, sir. तीनों इक्वल आए Yes, sir. क्या है A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to B1 by C2. So They are Pair of- coincident. So they are coincident. The pair of linear equations are coincident. it is coincident. Clear है? Yes, sir. ले लो भाई Yes, screen sir. पर मारो, फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. Sir, done. Shot ले लो। Yes, sir, it is done. So done. So done. Sir, done. अच्छा चलो एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल मैंने एक Yes, sir. स्टेटस लगाया था, देखा था मेरा स्टेटस एक Yes, कि अगर sir. किसी के नॉलेज में एक 2 BHK का रूम वाला सिस्टम हो तो क्या किसी के नॉलेज में है? हाँ No, sir. अगर है पापा से या मम्मी से या भाई बहन से किसी से पूछो, अगर हो तो इन्फॉर्म करना मुझे, ठीक है? खैराबाद के अंदर So what? Room. ये मुझे 2 रूम का सेट Sir, चाहिए, want one room that too. ठीक है? मैंने स्टेटस लगाया था, एक छोटा सा अगर घर मिल जाता है सेपरेट तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? थोड़ा सा सेपरेट पोर्शन चाहिए मुझे, क्योंकि मैं खैराबाद में आके पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है? सीतापुर में तो रहता ही हूँ, लेकिन मैं खैराबाद में आके पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इस वजह से मुझे चाहिए, अगर किसी के नॉलेज में हो तो बताना, ठीक है? Okay, sir. चले last part of this question. Six minus 3 plus 10. चलिए this is the last part of this question. 6x minus 3y plus 10 is equals to 0. 2x minus y plus 9 is equals to 0. So again a1 is equals to 6, b1 is equals to minus 3, coefficient of y, c1 is equals to plus 10, then a2 is equals to 2, b1. Here the coefficient is not given. Coefficient is not given, that means a single y. Single y होगा, single x होगा, तो आप क्या लोगे? 1. Can you cancel C2 is 9. Kulsum, off your mic. Kulsum, off your mic. चलिए, so a1 by a2, it will be 6 by 2. That means 3. Okay? 2 1 are 2. Yes, sir. 2 3 are 6.
V1 by V2 is equals to -3 by -1. So here is again 3. क्या मिला भाई? A1 और A2, A1 upon A2, V1 upon V2 की दोनों की वैल्यू सेम मिल गई। अब आते हैं C1 by C2 पे। C1 by C2 is equals to 10 by 9. क्लियर? अब 10 by 9 आपका क्या है? कट भी नहीं रहा है। तो कहने का मीन्स क्या है? आपको यहाँ पे क्या कंडीशन मिली है? A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. That means a no So solution. not equals to C1 by C2. Not So equals B1 to C1 by C2. That means a no solution. ठीक है? आप यहाँ पे लिखोगे तो pair of linear equation to pair of linear equation into variable are parallel. are Parallel. parallel. ठीक है? क्लियर हो गई बात इसमें? Yes sir. Who's mine? हो गया स्क्रीनशॉट? No sir. No, चलो भाई। please. No sir, please. Sir, done. Sir, ये सर अगर Sir, दो done. चीजें पैरेलल होगी तो सर ये इक्वेशन लिखना Sir होगा। is done. ये मैंने आपको ओके कंडीशन सर, दी सर थी ना? एक्चुअली मैंने Yes, क्या sir. बोला था कि A1 by A2 does not equal to B1 upon B2 आएगा, तो आप बोलोगे इंटरसेक्ट। आईसी इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, कंसिस्टेंट। ठीक है, इंटरसेक्ट को हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, ये कंडीशन थी A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, तो वो हमारी थी कोइंसिडेंट की। ठीक, और कोइंसिडेंट वाला भी Yes, sir. कंसिस्टेंट होता है। ठीक, थर्ड कंडीशन हमने बोली थी A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। C2. ठीक, इसको हम Yes लोग sir. बोलते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को ही पैरेलल बोलते हैं और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। मतलब इसके तीन नाम है। ठीक, क्लियर हो गई बात? Yes अगर ये sir. कंडीशन है तो आप Yes, इंटरसेक्ट sir. डाटा पॉइंट बोलोगे। ठीक, और कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो जिस वर्ड से, यानी कि जिस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक, दूसरा ये कंडीशन आती है तो कंसिस्टेंट भी बोला जा सकता है, कोइंसिडेंट भी बोला जा सकता है। कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट भी बोला जा सकता है। थर्ड कंडीशन मिलती है तो नो सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है, पैरेलल भी बोला जा सकता है और इनकंसिस्टेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर? Yes sir. ओके, Yes, sir. तो देखिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Clear है? सेम क्वेश्चन है, Yes sir. सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा सा चेंज है। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने पैरेलल, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और कोइंसिडेंट पूछ लिया था। अब इसमें क्या बोला है? कंसिस्टेंट बोलना है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा? Inconsistent. अगर आपके पास ये दो कंडीशंस आती हैं तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट। अगर आपको ये लास्ट वाली बोली मिली तो आप इसको बोल दोगे इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ रही है? हाँ, Yes sir. तो कितना सेम रहेगा? पहले आप कंपेयरिंग करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालोगे, देन उनका रेशियो निकालोगे और रेशियो के आधार पे ठीक है आपको इक्वेशंस मिलेंगी। ये कंडीशन मिल सकती है तो भी कंसिस्टेंट, ये मिली तो भी कंसिस्टेंट, लास्ट वाली अगर कंडीशन मिली तो वो इनकंसिस्टेंट की हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? Okay sir. देन Yes sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही ये पूछी गई है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि which of the following pair of linear equations are consistent and inconsistent with consistent obtain the solution graph. Just a wait, पहले मैं Sir, your voice is not coming, so I. Sir,
Sir, your voice is not coming, so that's why I can't understand question number 3. हाँ भाई बताओ, अब आ रही है? Yes, sir. Sir, एक बार question number 3 का intro फिर से करवा दीजिए। Yes, आवाज sir. नहीं आ रही, Yes, sir, आ रही है। समझ नहीं आया। फाइव आई कि नहीं आई ये बताओ। Yes, sir, अब आई। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड में उसने ये पूछा है कि आपके पास जो 5 कंडीशन दे रही है, यानी कि देयर आर 5 पार्ट्स, इन 5 पार्ट्स में आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उनको आपको ये बताना है कि विच पेयर इज अ कंसिस्टेंट और विच पेयर इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे करोगे? प्रोसीजर सेम होगा, क्वेश्चंस की इक्वेशंस को राइट करना है, a1 b1 c1 की वैल्यू निकालनी, a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी, उसके बाद रेशियो फाइंड आउट करना। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद अगर आपको पहली कंडीशन मिल गई तो भी कंसिस्टेंट, दूसरी कंडीशन मिली तो भी कंसिस्टेंट और तीसरी कंडीशन मिली, दैट मींस इफ यू गॉट अ थर्ड कंडीशन देन solution will be inconsistent. Is it clear? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Then sir. question number 4. Yes, sir. Yes, sir. As a question number 3rd, in that also. Sir, your voice is not clear. ये बात मेरी पहले भाई, सबको आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है? सही है। आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. नो सर, एक बोला नो सर, बाकी बोल रहे हैं यस सर। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करो, ठीक है? फिर कल हम लोग मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे। ओके Okay, sir. Okay, sir. और सुनिए, ये बताओ कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया भाई? फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया है? तो मैंने भी नहीं किया है। भाई कब करोगे? 20 तारीख के बाद? सर अभी नहीं किया है। बेटा 20 तारीख लास्ट डेट है और फिल करोगे तो आपको बहुत अच्छा, कहने का मीन्स ये है कि अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, हमको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन एक अच्छा सा नॉलेज गेन करने को मिलेगा, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है, फ्यूचर आपका ब्राइट है, ये मुझे पता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है कि जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको तुरंत कैचअप करते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? कि एज अ जीनियर स्टूडेंट अगर कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कैचअप करना है। आपको एक कहावत पता है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एट वंस, यानी जो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है वो क्या होता है, दरवाजा कब खटखटाती है? खटखटाती जरूर है एक बार। अब जो उसको कैचअप कर लेता है वो थोड़ा सा 2 कदम आगे चला जाता है, और जो सोचा अरे यार कोई आया होगा खटखटा रहा, भाड़ में जाए, सोचते हैं बाद में शाम को देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होते हैं। समझ में आई बात? अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुरंत कैचअप करो, कैसी भी क्यों ना हो, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा चलेगा, लेकिन कहने का मीन्स क्या है, कुछ सीखने को नया मिलता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, Yes, sir. Yes, sir. Fill the ठीक है, तो प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि भरो, फॉर्म को फिल करो, कुछ नया सीखो, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी के लिए तो हम है ना यार, कह तो रहे हैं कि हम अवेलेबल हैं आपके लिए। हेलो सर। ठीक है From where we have to fill the form? जी, Yes, sir. Please tell. चलो Sir, from मिलते हैं where we कल। have to fill the form? Okay, sir. I Okay, have sir. sent a Thank you, sir. PDF also, na? I had a Will you send a send a PDF PDF to also? all the students to ask for me. If you want, then please. So, but where we have to fill the form? If you want, then please give a message. ठीक है, on my WhatsApp number, then I will send a PDF file, and in that PDF file you have a blue color link, and when you click on that link, you got a step. You got the several courses, and your course is on 35 number. Okay, आपका जो कोर्स है समर वाला वो 35 नंबर पे है, और उसमें 35 नंबर पे आपका रिमोट सेंसिंग का कोर्स दिया हुआ है, और उस पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के 2 चीजें कॉलेज के रिक्वायर्ड होंगी, वो आपकी मेल आईडी होगी और कॉलेज का नंबर होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी मांगेगा मुझसे। Okay, sir. ठीक है, Okay. चलिए मिलते हैं कल। Yes, sir. Okay, Thank you, bye. sir. Thank you, sir. Okay.